morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is sports person. It is a noun. यह एक संज्ञा है. हिंदी में इसका अर्थ है खिलाड़ी. In English, the meaning of this word is someone who plays sports, especially the one who plays it well. So now about using this word to frame sentence, it can be like that. A true sports person is one who plays with the heart. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class? Children, as you know that we are discussing our chapter number 12, People at Work. So after a quick recap, we will be doing book work of this chapter. So let us start. We are doing our EVS chapter number 12, People at Work these days. So what we have done so far, हमने अभी तक क्या किया है, क्या डिस्कस किया है. We have discussed different people having different professions or jobs or occupations. हमने अलग अलग लोगों के बारे में डिस्कस किया है जिनके different occupations हैं, जॉब हैं या प्रोफेशन है. So we also came to know that why different people do different work. Why don't they do same kind of work? वो एक ही तरह का काम क्यों नहीं करते हैं. So we have known, हमें पता चला है, हमने जाना है कि ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रोफेशन होना, अलग अलग ऑक्यूपेशन होना, अलग अलग जॉब होना, पीपल लोगों की इंटरेस्ट पर, लोगों की एबिलिटी पर, लोगों के स्किल पर, लोगों के रिसोर्सेज पर, और उनकी विल पर कि वो क्या काम करते हैं, वो किस काम को चूज़ करते हैं और उसे अपना अर्निंग का वे बनाते हैं. People have different professions. In our EVS book, we have discussed about cobbler, a blacksmith, a gardener, a policeman, a farmer, a barber, a mechanic, a tailor, a baker, a chemist, a writer, a clown, a musician, a dancer and a singer. So now what is next? Let us start. Open your book, page number 58. Here we will be discussing about these personalities. These are all sports persons. So after that we will be doing or starting our book work. So as you know कि different people have different kind of jobs or occupation. How do they choose them? वो कैसे choose करते हैं? उनके interest पर depend करता है, उनकी ability पर depend करता है, उनके skill पर depend करता है और उनके hard work पर depend करता है कि वो क्या profession choose करते हैं और उसे अच्छा सा करते हैं. So here we can see these are personalities are belong to India, वो इंडिया से belong करते हैं. This is MS Dhoni, this is युवराज सिंह and this is सानिया मिर्जा. All these are sports person, these are famous sports person that belong to India. So MS Dhoni and युवराज सिंह are associated with cricket, वो क्रिकेट से जुड़े हैं. whereas सानिया मिर्जा is associated with tennis, वो टेनिस की प्लेयर हैं. So ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अचीव किया है अपनी लाइफ में. इन्होंने बहुत अच्छे से अपना जो स्पोर्ट्स है वो खेला है और अपने हार्ड वर्क की कारण इन्होंने और अपनी डेडिकेशन की वजह से इन्होंने अपना ही नहीं इंडिया, अपने भारत का भी नाम रोशन किया है. उन्होंने इंडिया को भी ग्रेट फेम दिलाया है. ये उनका अर्निंग का सोर्स भी है. उनका जो स्पोर्ट है, उनका जो प्रोफेशन है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये उनका प्रोफेशन भी है, उनका ऑक्यूपेशन या जॉब भी कहा जा सकता है. इसी से उन्होंने अपना मनी अर्न किया है और साथ में ही उसे अच्छे से काम करके अपने आप को और अपने कंट्री को भी फेम दिलाया है. एज वी नो कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्हें बहुत डेडिकेशन से, बहुत हार्ड वर्क से और बहुत एक डिसिप्लिन तरीके से अपना जो लाइफस्टाइल रखना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा समय के लिए खेले. सो दैट वाज अबाउट दिस प्रोफेशन स्पोर्ट्स पर्सन. स्पोर्ट्स पर्सन एज यू नो कि पर्सन क्या है, ये कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन आप किसी तरह से कह सकते हैं. एक तो कॉमन नाउन वैसे ही है क्योंकि ये एक किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए हम कह रहे हैं. बट ये पर्सन क्या है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए कहा गया है. सो पर्सन कोई भी हो सकता है. हु इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, समवन हु प्लेज स्पोर्ट्स
and who, especially the one who plays it well. So that is called a sports person. So children, today we are going to start or do our bookwork exercises that are on page number 58. Here we can see this is practice exercise section A. This is A question number. Tick the correct answer. सही आंसर को टिक करेंगे. A person who catches thieves is a, एक ऐसा पर्सन जो चोरों को पकड़ता है वो क्या कहलाता है? फार्मर, पुलिसमैन और टेलर. सो वी ऑल नो द पर्सन हु कैचेस थीव्स इज अ पुलिसमैन. पुलिसमैन का वर्क है कि वो चोरों को पकड़े और हमारी जान की और हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करे. नेक्स्ट एट नंबर 2, अ पर्सन हु ग्रोज फूड क्रॉप्स इज अ सिंगर, मैकेनिक, फार्मर. एक ऐसा पर्सन जो फूड क्रॉप्स को उगाता है. फूड क्रॉप्स क्या होती हैं? जो कि फसल उगाई जाती है, फिर उसे बाज़ार में जाकर या पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर उसे सेल किया जाता है. सो फूड क्रॉप्स को जो उगाने वाला पर्सन सिंगर, मैकेनिक या फार्मर में से क्या है? द राइट आंसर इज फार्मर. अ फार्मर ग्रोज फूड क्रॉप्स फॉर अस. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. इस ग्रुप में किसी ग्रुप में इन दोनों में से हमें जो ऑड वर्ड है उसे सर्कल करना है. द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज गिवन टू अस इज क्रॉप्स, टीचर, गार्डनर, पुलिसमैन. सो यहाँ पर टीचर, गार्डनर एंड पुलिसमैन क्या हैं? प्रोफेशंस हैं. बट क्रॉप्स क्या है? फसल है. सो ये क्रॉप्स कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई जॉब या ऑक्यूपेशन नहीं है, ना ही कोई पर्सन का जो ऑक्यूपेशन कहा जा सकता है. वेयर एज टीचर, गार्डनर और पुलिसमैन क्या हैं? ऐसे पर्सन जो अपना अपना पर्टिकुलर वर्क करते हैं. सो दिस वर्ड इज ऑड हियर. वी विल सर्कल दिस वर्ड क्रॉप्स. नेक्स्ट एट नंबर 2, कॉबलर, लाफ, टेलर, ब्लैक स्मिथ. कॉबलर क्या है? जो शूज़ मेंड करता है. लाफ मीन्स हंसना. टेलर मीन्स जो कपड़े स्टिच करता है. एंड ब्लैक स्मिथ जो लोहे का सामान बनाता है, लोहे के टूल्स बनाता है, उसे ब्लैक स्मिथ कहते हैं. सो व्हाट इज ऑड वर्ड हियर? लाफ. लाफ मीन्स हंसना. ये वर्ब है, ये काम है. बट यहाँ पर ये जो पर्सन है कॉबलर, टेलर और ब्लैक स्मिथ, इनसे ये एसोसिएटेड नहीं है. सो ये डिफरेंट वर्ड है क्योंकि यहाँ हम पर्सन्स के ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर रहे हैं. लाफ इज अ डूइंग वर्ड. सो वी विल सर्कल दिस वर्ड एज ऑड वन. द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी. अगेन वी हैव MCQs और टिक द करेक्ट आंसर्स. दिस इज एक्सरसाइज ए. अ पर्सन हु ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक इज अ, एक पर्सन जो हमें ट्रीट करता है, हमारा इलाज करता है जब हम बीमार होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस डॉक्टर, केमिस्ट, सिंगर. सो अ पर्सन हु ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक इज़ अ डॉक्टर. डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं जब हम बीमार होते हैं. सो केमिस्ट क्या करते हैं? वो जो मेडिसिन्स हैं वो सेल करते हैं. एंड सिंगर क्या होते हैं? वो गाना गाते हैं. सो दिस इज़ द राइट वर्ड. वी हैव टू टिक दिस वर्ड. नेक्स्ट एट नंबर 2, हु लुक्स आफ्टर अवर गार्डन. हमारे गार्डन की देखभाल कौन करता है? ऑप्शंस आर मैकेनिक, फार्मर, गार्डनर. सो मैकेनिक क्या है? कुछ मशीनरी से रिलेटेड रिपेयर करता है. फार्मर क्या है? जो खेत में फसल बोता है, फूड क्रॉप्स उगाता है. गार्डनर क्या है? हमारे गार्डन की देखभाल करता है. वो फार्मर और गार्डनर डिफरेंट हैं. गार्डन की देखभाल करने वाले पर्सन को हम गार्डनर कहते हैं. सो हम इसे टिक करेंगे. दिस ऑप्शन इज राइट. Turn the page children. Page number 59 to be taken out. We have remaining bookwork exercise here on this page. This is exercise B. Fill in the blanks correctly with the words given below. Here we have been given these words. We have to fill these words, appropriate words in particular sentence हमें fill करना है. So first of all we will be reading all the words. Barber, carpenter, baker, teacher, tailor. So we have 5 sentences given to us और हमें correct word हमें fill करना है. We have to read the sentence carefully, thoroughly कि ये sentence किस word से related है जो box में दिया गया है. So I teach you in class. I am a dash. मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ. I am a, इनमें से क्या हूँ मैं? Teacher. So this word is correct. We have to fill this word here. Next,
आई बेक ब्रेड एंड केक्स, आई एम अ डैश। मैं ब्रेड और केक को बेक करता हूँ, मैं क्या हूँ? आई एम अ बेकर। सो जो ब्रेड, केक्स और बिस्किट बेक करते हैं वो क्या होते हैं? बेकर। सो आई एम अ बेकर। नेक्स्ट, आई स्टिच क्लोथ्स फॉर यू, आई एम अ डैश। मैं आपके लिए कपड़े सिलता हूँ या सिलती हूँ, आई एम अ, मैं कौन हूँ? टेलर। सो कपड़े सिलते हैं उन्हें टेलर कहा जाता है। नेक्स्ट, एट नंबर 4, आई मेक वुडन टेबल्स एंड चेयर्स। मैं लकड़ी की मेज और कुर्सी बनाती हूँ या बनाता हूँ, आई एम अ डैश। मैं क्या हूँ? कारपेंटर। सो दिस वर्ड इज अप्रोप्रिएट हेयर। जो लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं वो कारपेंटर होते हैं। नेक्स्ट, आई कट योर हेयर। मैं आपके बाल काटता हूँ, आई एम अ डैश। मैं कौन हूँ? बार्बर। सो अ बार्बर कट्स अवर हेयर। हमारे बाल काटता है वो बार्बर होता है। बी डूइंग एक्सरसाइज डी। जी इज नेम द पीपल इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखकर वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दीज पीपल। हमें इनके नेम्स लिखने हैं कि ये क्या काम करते हैं, ये क्या हैं। सो हेयर यू कैन सी, इस पिक्चर को देखकर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये शेफ़ है या बेकर है। सो जिस तरह का यूनिफॉर्म, जिस तरह का एप्रन, जिस तरह का जो कैप है वो पहनते हैं। बट वी हैव टू लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। ये जो थिंग्स इन्होंने कैरी की हुई हैं ये क्या हैं? बेक डिशेस हैं। सो ये क्या हैं? बेकर। सो दिस इज बेकर। नेक्स्ट, द पर्सन हु इज मेकिंग टूल्स विद आयरन। आयरन से जो टूल्स बनाते हैं वो क्या होते हैं? ब्लैक स्मिथ। सो हेयर यू कैन सी, ये जो टूल्स बनाए हुए हैं वो नाइफ्स हो सकते हैं, वो कुछ ऐसे आयरन टूल्स हो सकते हैं, वो आयरन से बनते हैं। उन्हें कौन बनाते हैं? ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट, दिस इज द इमेज ऑफ अ बार्बर। अ बार्बर कट्स अवर हेयर। बार्बर हमारे बाल काटता है। सो दिस इज बार्बर। सो चिल्ड्रन, we have done the book work of our chapter number 12, people at work. Now what next we are doing? We will be revising the test matter. The test is scheduled on Friday. So उसके regarding हम revision करेंगे. As you know that the test of keywords and book work of chapter number 10, useful animals, is scheduled on 30th October. So today we are going to revise the test matter. So firstly we will be revising keywords of chapter number 10. So we have 8 keywords for this chapter that are written in our EVS notebook. So at number 1, buffalo. buffalo क्या है? एनिमल है, भैंस। BUFFALO, buffalo. नेक्स्ट इज प्रॉन. प्रॉन क्या है? सी में मिलने वाला एक एनिमल है जिसे सी फूड में के रूप में भी खाया जाता है। सो PRAWN, प्रॉन। नेक्स्ट एट नंबर 3, वुलन. WOOLLEN, वुलन मतलब ऊनी, ऊन से बने हुए उन्हें क्या कहते हैं? वुलन। एट नंबर 4, लेदर. लेदर क्या है? एनिमल्स की स्किन से जो एक चीज़ बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लेदर। सो लेदर का प्रयोग किस में होता है? जैकेट्स, बेल्ट्स, क्लोथ्स बनाने में, शूज़ बनाने में। सो LEATHER, लेदर। नेक्स्ट एट नंबर 5, प्लो. प्लो क्या है? एक हल जिसे कहते हैं हिंदी में, टूल है जो फील्ड में या फार्म में जो सैंड है, सॉइल है, उसे टिल करने के काम आता है। उसे फसल बोने के लायक बनाने के लिए हम प्लो का यूज़ करते हैं, जो फार्मर यूज़ करता है। बेसिकली हम नहीं यूज़ करते हैं। फार्मर या तो खुद इसे चलाता है या ऑक्सन की मदद से चलाता है। नेक्स्ट एट नंबर 6, मेडिसिन. मेडिसिन्स मीन दवाई. दवा जिसे हम खाते हैं वो लिक्विड भी हो सकती है, वो टेबलेट के रूप में भी हो सकती है। सो एट नंबर 7, मैन्योर. मैन्योर क्या है? खाद. MANURE, मैन्योर. फसल को और अच्छा बनाने के लिए हम मैन्योर डालते हैं। वो नेचुरल जो चीज़ों से बना भी हो सकता है, या वो ऑर्गेनिक जिसे कह सकते हैं, नेचुरल इन द सेंस ऑर्गेनिक, और वो बाज़ार में मिलने वाला भी हो सकता है। मैन्योर से प्लांट्स
को मिनरल्स मिलते हैं ज़रूरी और वो अच्छे ग्रो होते हैं। नेक्स्ट एट नंबर 8 प्रोवाइड, PROVIDE, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, देना। सो चिल्ड्रन, दिस इज द बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 10, यूजफुल एनिमल्स. We are going to revise it for our test that is scheduled on 30th of October. So children, this is the book work of chapter number 10. We are going to revise it. This is practice exercise section A. Question A, tick the correct answer. सही आंसर को टिक करेंगे. Question number 1, we get honey from, हमें हनी कहाँ से मिलता है? ऑप्शंस आर प्लांट्स, हनी बीज, ट्रीज. सो एज वी नो कि हनी बीज हैं वो फ्लावर्स के नेक्टर से हनी को प्रोड्यूस करती हैं और हम उस हनी को यूज़ करते हैं, तो हनी बीज हमें वो हनी प्रोवाइड करती हैं. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. नेक्स्ट एट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेट, इनमें से कौन सा एनिमल पेट है? पेट एनिमल मतलब हम उसे अपने घर में रख सकते हैं. सो ऑप्शंस आर चीता, जिराफ एंड डॉग. सो एज वी नो, चीता एंड जिराफ आर वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स को हम अपने घर में नहीं रखते हैं एज पेट. सो डॉग एक ऐसा एनिमल है इनमें से जिसे हम पेट के रूप में घर में रखते हैं. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट एट एक्सरसाइज बी, मैच करेक्टली, हमें करेक्टली मैच करना है. वी हैव बीन गिवन वर्ड्स इन दिस कॉलम आर डॉग्स, कैट्स, हनी बीज. नाउ वी विल बी रीडिंग द वर्ड्स दैट आर गिवन इन दिस कॉलम. गिव हनी, guard homes, keep mice away. So dogs is to be matched with guard homes. Dogs हमारे घर को गार्ड करता है, हमारे घर की रखवाली करता है. नेक्स्ट cats, keep mice away. cats का क्या यूजफुलनेस है कि वो माइस को दूर भगाती हैं. सो cats is to be matched with keep mice away. नेक्स्ट honey bees, give honey. We will match honey bees with this option, give honey. Children, next is practice exercise section B. टिक द करेक्ट आंसर्स. द एनिमल विच डजंट गिव अस मिल्क इज़ द, इनमें से कौन सा एनिमल जो हमें दूध नहीं देता है? दैट इज़ गॉट, एलिफेंट और काउ. उनमें से क्या है जो हमें दूध नहीं देता है? सो वी गेट मिल्क फ्रॉम गॉट एंड काउ. एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसका दूध हम यूज़ नहीं करते हैं. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. हमें पूछा गया है कि कौन सा एनिमल इनमें से दूध नहीं देता है. सो गॉट और काउ हमें दूध देते हैं, एलिफेंट नहीं देता है. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. नेक्स्ट एट नंबर 2, वी गेट बटर फ्रॉम डैश, हमें बटर कहाँ से मिलता है? वाटर से, मिल्क से या बोथ? सो वी गेट बटर फ्रॉम मिल्क. मिल्क को चर्न करके हम बटर बनाते हैं, वाटर से नहीं मिलता है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. वी गेट बटर फ्रॉम मिल्क. वेन एवर यू हैव बीन गिवन दिस ब्लैंक, आपको टिक तो करना ही है, साथ में इस ब्लैंक में लिखना भी होता है. सम ऑफ यू मिस दिस थिंक, आप इसमें से ये चीज़ मिस कर देते हैं. आप टिक तो कर देते हैं बट इस ब्लैंक में लिखना भूल जाते हैं. सो आई हैव रिमाइंडेड यू अगेन एंड अगेन कि आपके मार्क्स कट जाएंगे. आप इन्हें वर्ड को टिक करने के बाद जिस भी जगह ऐसा स्पेस दिया गया है वहाँ वो ऑप्शन वर्ड ज़रूर लिखें. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्टली विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी मदद से हमें ये फिलअप्स फिल करने हैं. द वर्ड्स आर हेंस, डोंकी, शीप, सिल्क वॉर्म्स. सो ये एनिमल्स के नेम है. वी विल बी रीडिंग सेंटेंस नंबर 1. वी गेट एग्स फ्रॉम, हमें एग्स कहाँ से मिलते हैं? इनमें से हेन से, डोंकी से, शीप से, सिल्क वॉर्म से. सो वी यूज़ द एग्स गिवन टू अस बाय हेन्स. सो वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स. हेन्स से हमें एग मिलते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम, इनमें से किस एनिमल से हमें वूल मिलती है? ऊन मिलती है जिससे हम वूलन क्लोथ्स बनाते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप, भेड़ से वो ऊन मिलती है. नेक्स्ट एट नंबर 3, वी गेट सिल्क फ्रॉम, हमें सिल्क किस एनिमल से मिलता है? सो हमने ये ऑप्शन यूज़ कर लिए हैं ऑलरेडी, हेन्स एंड शीप. सो वी हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट, डोंकी एंड सिल्क वॉर्म्स. सो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क से हमें मिलता है सिल्क बनाने वाले कीड़े से. सो उसे वो हमें सिल्क देता है. नेक्स्ट एट नंबर 4, अ डैश कैरीज लोड फॉर अस, एक ऐसा एनिमल जो हमारे लिए लोड उठाता है, बोझा उठाता है, हमारा काम हल्का करता है, आसान करता है, दैट इज डोंकी. सो वी विल फिल दिस वर्ड डोंकी हेयर. नेक्स्ट पेज वी हैव टू एक्सरसाइज, दैट इज
नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स, इन पिक्चर्स के नेम लिखने हैं. दिस इज hen, ये hen है. दिस इज हनी बी एज वी कैन आइडेंटिफाई इट, एंड दिस इज फिश. नेक्स्ट एट क्वेश्चन ई, यू सी अ फ्यू चिल्ड्रन थ्रोइंग स्टोन्स एट अ डॉग, व्हाट विल यू डू. आप देखते हैं कि कुछ बच्चे एक डॉग के ऊपर स्टोन्स थ्रो कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं. सो आप इनमें से क्या करेंगे. आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन ए इज ज्वाइन दम, उनके साथ आप शामिल हो जाएंगे, आप भी फेंकना शुरू कर देंगे. इज दिस सो? नो. ऑप्शन बी है टेल द चिल्ड्रन दैट हर्टिंग एनिमल्स इज रॉन्ग. आप ये ऑप्शन चूज करेंगे. आई एम श्योर एंड आई नो दैट कि आप बताएंगे उन बच्चों को कि एनिमल्स को हर्ट करना गलत बात है. सो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे. आई एम क्वाइट श्योर. सो एज वी नो कि एनिमल्स को हर्ट करना, किसी भी चीज़ को हर्ट करना, किसी पर्सन को हर्ट करना, किसी प्लांट को हर्ट करना, वो रॉन्ग थिंग है. सो that was about the book work of chapter number 10. So I am sure you will be preparing well for your upcoming test. So that's all for our EVS class, children. Bye bye, take care.